Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday I was explained some questions in the chapter number 4, that is states of matter. States of matter से जो भी questions है वो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं तो 12 में आते. अगर 11 से केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस पूछ लिया तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टेट्स ऑफ मैटर्स के क्वेश्चंस आते. In these states of matter, some important SAQs are there, which I was explaining in last class. Which are those questions? First one is write the important postulates in the kinetic molecular theory, KMT postulates. And second one is the derivation of the ideal gas equation. Ideal gas equation का derivation करो बोल के पूछ सकता. And the third question, what is that third question? I was explained, that is derive Boyle's law. Derive Boyle's law, Charles law from kinetic gas equation. The another important question in this is state and explain Graham's law of the diffusion. State and explain Graham's law of diffusion. चलिए, ये इंपॉर्टेंट SAQs है चैप्टर में. इंशाल्लाह ये 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में. इसमें से 3 एक्सप्लेन करा मैं. KMT पोस्टुलेट, आइडियल गैस इक्वेशन. लास्ट क्लास में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन. गर्मी हो रही हाँ, ऐसी को बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन कराया था. स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझा रहे हैं हम. 4th क्वेश्चन समझा रहा हूँ और इसके बाद में ये चैप्टर के VSAQs समझाते बेटा आज. तो इसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. चलिए, फर्स्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में समझा रहे हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन? हाउ मच गैस इज डिफ्यूज्ड इन ए गिवन टाइम. गिवन टाइम में कितनी गैस डिफ्यूज हुई, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ए गिवन मोलर गैस, given volume gas, rate of the diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. Inversely proportional to square root of its density. This is called as the Graham's law of diffusion. Rate of the diffusion of the gas is inversely proportional to the square root of its density. ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, or inversely proportional to 1 under root d. So this is about the Graham's law of diffusion. Once again I am repeating, rate of the diffusion of gas. What is the rate of the diffusion? How much gas is diffused in 1 second time or a given time is called as rate of diffusion. Rate of the diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density is called as Graham's law of diffusion. This is the definition of the Graham's law of diffusion. What is the meaning of this बेटा? अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होता, जिसकी डेंसिटी कम है वो गैस जल्दी डिफ्यूज होती. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. नाउ देन आई एम कंसिडरिंग, इफ यू कंसिडर इफ R1 and R2 are the diffusion rates of the gases whose density is D1 and D2. एक गैस ले लिया भाई, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R को लिख रहा हूँ. अनदर गैस, रेट ऑफ द डिफ्यूजन इसकी R2 बोल के लिख रहा हूँ. R1 गैस की जो डेंसिटी है D1 है और नेक्स्ट R2 गैस की जो डेंसिटी है D2 है. देन द ग्राहम्स लॉ कैन बी रिटन लाइक दिस. R1 बाई R2 इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको, अंडर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, अंडर रूट D2 बाई D1. So this is the one equation. ये एक Graham's law का equation है. If I am taking two gases, rate of the diffusion of the first gas is R1 and rate of the diffusion of the second gas is R2.
whose density is d1 and d2, then the Graham's law of the diffusion is r1 by r2 is equal to d2 by d1 at constant temperature and pressure. Once again I am writing this, r1 by r2 is equal to the under root d2 by d1 at constant temperature and pressure. Next, at constant temperature and pressure, density, molar volume of the gases does not changes. So D1 can be written like this, इसको M1 volume नहीं change हो रहा, molar volume does not change with the constant temperature and pressure. D1 can be written, D1 is equal to M1 by V, and D2 can written like this, M2 by V. Volume नहीं बदल रहा, तो D1 को ऐसा लिख सकते, D2 को ऐसा लिख सकते. Now then इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ बोले तो मॉलिक्यूलर वेट्स ले रहा हूँ यहाँ M2 बाई M1, इस तरीके से भी लिख सकते. दिस इज द सेकेंड फॉर्म, R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1. Now next, you know the relationship between the density and the vapor pressure, or molecular weight and vapor pressure. Molecular weight of a gas is equal to 2 into vapor density. So therefore that equation is also can be written as R1 by R2 is equal to under root VD2 by VD1 बोल के भी लिख सकते. Then the overall reaction is R1 by R2. जब से कौन से लिख लिया मैं वो डाल लीजिए आप. That is D2 by D1. That is equal to, क्या लिखना है भाई यहाँ पे, डेंसिटी के बाद में मैं क्या लिया था, M2 by M1. That is also equal to this one. What is that? VD2 by VD1. This is about the statement and explanation of the Graham's law of diffusion. Now then, छोटे छोटे क्वेश्चन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, VSAQ से आते हैं, VSAQ से आते. So what is the important VSAQs in this, on this Graham's law of diffusion? That is the question, among N2, O2, CH4, ये तीन गैसेस को दे रहा, which diffuses fastly and why? This is your question. N2, O2, CH4, तीन gases दे रहा. Among these three gases, which diffuses fastly and why? So just I was explained you, the gas with less density diffuses fastly than the remaining gases. So density depends upon what? Molecular weight. Just you check it out, whose molecular weight is less in this. नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन एटॉमिक वेट इज 14, दो नाइट्रोजन है 14 प्लस 14 28. N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 है. O2 का मॉलिक्यूलर वेट, एक ऑक्सीजन का 16 है और एक ऑक्सीजन का 16 है, O2 का 32 हो गया. ओके, नो नेक्स्ट अनदर गैस दैट इज CH4 है. ये CH4 कार्बन का वेट कितना है भाई, 12 है और चार हाइड्रोजन है, 12 प्लस 4 16. तो किसका वेट कम आ रहा अपने को, CH4 का. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द CH4 इज लेस, देयरफॉर दिस CH4 gas diffuses fastly than the N2 and O2 gas. Once again I am repeating this, among N2, O2, CH4, methane diffuses fastly than the remaining gases, than the N2 and O2, because its molecular weight is less than that of the N2 and O2. Weight of the N2 is 28 and molecular weight of the O2 is 32. This is the one question. Another one, how many times methane diffuses fastly than the sulfur dioxide gas? This is another question. How many times CH4 gas, that is the methane gas, diffuses fastly than sulfur dioxide gas? So this is another question.
Further, there are two gases are given, therefore that is R1 by R2, ये फार्मूला यूज करना है। चलिए R1 क्या लेना चाह रहे हैं आप, दैट इज दिस वन, और CH4 इधर डाल लीजिए फर्स्ट गैस, एंड R2 की जगह SO2 डाल लीजिए, दोनों गैसेस के डाल लिया, RCH4 बाई RSO2, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट डाल लीजिए। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द CH4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, या नीचे रहने से M2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 बाई ये CH4 जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब यहाँ पे कौन सा है मॉलिक्यूलर वेट CH4 का, ये ले लेना CH4 यहाँ पे, अंडर रूट MSO2 बाई MCH4। Now then substitute कर लीजिए, M is the molecular weight. Now what is your answer? RCH4 by RSO2 is equal to molecular weight of SO2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 32 है, दोनों का वेट मिला के SO2 का वेट 64 है, और मीथेन का वेट अभी मैं करा ये 16 है, 16 4 64 होता, अंडर रूट 4 है, रूट 4 बोले तो यू विल गेट दी 2। So 2 times methane diffuses faster than that of the sulfur dioxide gas. और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of 5 moles of N2 gas at 27 डिग्री C, ये देता क्वेश्चन में। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VSAQ में आ रहा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 moles of N2 gas at 27 degree C. So for that we are using this formula, kinetic energy formula, that is 3 by 2 nRT, ये फार्मूला यूज कर लेना। ओके, ये फार्मूला यूज करना है आपको। नो देन KE इज इक्वल टू 3 by 2 n की जगह यहाँ क्वेश्चन से देखना हाउ मेनी मोल्स, 5 मोल्स अगर दे दिया, अगर 2 मोल्स दे दिया तो 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, 5 दिया तो 5 को सब्स्टिट्यूट करना है, 5 इंटू गैस कांस्टेंट किस में भी ले लो आप, यहाँ पे कैलोरीज में ले रहा हूँ मैं, 2 कैलोरीज है, और टेम्परेचर है भाई, ये टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर दिया 27C दे दिया आपको, ये 27C को आपको केल्विन्स में तब्दील करने के वास्ते यू हैव टू ऐड दिस 273 प्लस 27, ये 0, दैट इज यू विल गेट दिस 300 आता, ये 300 है, ये 2 कट हो गया भाई, ये कट हो गया, फिर उसके बाद में 5 3 15, ये 4500 आता है, 4500 कैलोरीज। Okay, this is about the kinetic energy of the 5 moles of nitrogen gas at the 27 degrees Celsius. जो important questions थे states of matter से, वो important questions complete हो गए। Now then another chapter, 5th chapter में stoichiometry, स्टैक्योमेट्री, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 से पूछ लेता है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द स्टैक्योमेट्री। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला calculation, empirical formula, and the second one is balancing the equation। तो इसमें से एक मॉडल या दो मॉडल प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन कैसा भी रहता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और बैलेंसिंग द इक्वेशन से रहता है क्वेश्चन।
फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? आई एम राइटिंग दिस, देखिए C6H6, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन. सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है लिखने को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल के बुलाते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ देन व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कितने कितने एटम्स है, कौन से एटम्स है देख लेंगे, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेना. ये 6 है, ये 6 है, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1. व्हाट इज द रेशियो? 1:1 रहने से ये जो रेशियो लिख रहा हूं मैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो भी है वो एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो को क्या बोल के बुलाते हैं? बोले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, एफ एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल के बुलाते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. वेरियस एटम्स कौन से है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने, उसके एटम्स कितने लिखने को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. What is the empirical formula? Simplest ratio of the various elements present in that compound is called as empirical formula. Now then calculation of the empirical formula. इसके वास्ते एक क्वेश्चन है empirical formula. कार्बन कंपाउंड ऑन द एनालिसिस ऑफ द कार्बन कंपाउंड. एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता ज्यादा. A carbon compound upon analysis gives the following percentage composition. Carbon compound upon analysis gives following percentage composition of various elements. इसमें carbon is present about 10.6%, and the second one hydrogen is present about 0.84% दिया. Next one chlorine is present about 89.10%. These are the percentage compositions are given in the question. Then आप क्या करना है, आपका इसका simplest ratio निकालना है. That is called as the empirical formula. See that for the calculation of the empirical formula, you have to write the percentage composition clearly. Percentage composition various elements का clear से लिख लेना. Once again I am repeating this. In the calculation of the empirical formula, first you have to write the percentage composition of the different elements clearly. Carbon is given how much percentage? That is 10.6%, and the second element that is given, that is the hydrogen. What is the percentage weight of that? Is 0.8% is given. Now then another element chlorine is given, that is about how much percentage? 89.10% में chlorine है. Now this is the first step. We are writing the percentage composition clearly. Now what is the second step? Divide the percentage composition. Divide the following percentage composition with their respective atomic weights. परसेंटेज कंपोजिशन को एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है. सो कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्लियर से दैट इज लिख ले रहा हूँ 10.6% है. तो इसके एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है? वो 12 है. ये स्टेप्स डाल लो पहले, उसके बाद डिवीजन करेंगे. नाउ देन फिर उसके बाद हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है 0.84. एटॉमिक वेट ऑफ द हाइड्रोजन इज 1. यहाँ पे 1 लिख लिया हूँ मैं. This is about the hydrogen. Now next about the chlorine. क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है मालूम है आप? परसेंटेज कंपोजिशन 89.10.
and the atomic weight of the chlorine is 35.5. This is the second step. So what is the first step? We are writing the percentage composition clearly. Then second step, divide the following percentage composition. Divide the percentage composition with their respective atomic weights. वो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है. नो नेक्स्ट यहाँ डिविजन्स थोड़ा 10.6 है भाई, ये 12 है, ये 0, ये 106, 120, 106 है, ये 120, तो ये 120 है, नहीं जा रहा है. नो नेक्स्ट ये 8 से देख लो आप, 096 आ रहा, तो ये 9 30 से अबाउट या देख लेना अपने को कितना आ रहा है. यहाँ पे कार्बन इज इक्वल टू 0 पॉइंट, कभी भी एक वैल्यू इधर से मैच हो रही, अभी करा मैं ये 0.8, या बाजू का एलिमेंट का हाइड्रोजन का कितना है, कभी भी तीनों में से एक का मैच होते रहता, तो मैं करा तो भी डिवीजन 0.8 समथिंग आ रहा, दैट इज आप 0.84 के बराबर कर लो. 0.84 है, देन 0.84 बाई 1, हाइड्रोजन का जो आ रहा वो 0.84 बाई 1 बोले तो यहाँ पे 0.84 ही ले लेना है आपको. नाउ देन फिर उसके बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0.84 और 89.10 बाई 35.5 द डिवीजन ऑफ दैट. ये देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 35 टूस कितने होते, 71 होते, तो डिवीजन करिए आप लोग, करे तो आपको 2.5 आता. सो क्लोरीन का जो परसेंटेज, ये जो रेशियो है एटॉमिक वेट से डिवाइड करा तो वो रेशियो क्या आया, 2.5 आया. सो दिस इज अबाउट दी वैल्यूज. ये तीन वैल्यूज है जिसको मैं लिख लिया मैं. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ देन थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप इन दिस? ये तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है सेलेक्ट कर लेना. ये 0.84 है, 0.84 है, 2.5 है, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए आप लोग, तीनों का अलग अलग है ये. तो फर्स्ट वाला लीस्ट वैल्यू 0.84 है, ये लीस्ट वैल्यू को लेके मैं सबको डिवाइड कर ले रहा हूँ. 0.84 बाय 0.84 you will get 1. Once again 0.84 by 0.84, at here also 1. 2.5 by 2.5 by 0.84 you will get दी. यहाँ पे 3 आता, डिवीजन करके देखिए. नो तीनों एलिमेंट्स है भाई, कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन. इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 1 है, क्लोरीन का 3 है. तो empirical formula of that compound is CHCl3. This is the empirical formula of that compound. Once again I am repeating this. To calculate the empirical formula, first you have to write the percentage composition clearly. Then you divide, second step, divide the percentage composition with their respective atomic weights. डिवीजन करा, कार्बन 10.6 था, 12 से डिवीजन करा तो 0.84 आया. 0.84 by 1 0.84 है. 89.10 35.5 is the molecular weight of the chlorine. As a result you will get the 2.5. Now what is the third step? You select the least value among them. लीस्ट वैल्यू, तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू ऑलमोस्ट ऑल ये वो दो सेम है, तो ये लीस्ट वैल्यू लेके सबको डिवाइड करना. 0.84 by 0.84 1, 0.84 by 0.84 once again 1, 2.5 by 0.84 you will get 3. The ratio of the different elements, that is carbon, hydrogen and chlorine, present in this compound, in this organic compound, in this carbon compound is CHCl3. This is the ratio. This is the one problem. यही पैटर्न में आपको और एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं. बाकी के दो प्रॉब्लम्स और बचे हुए हैं, वो कैलकुलेट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन एनालिसिस gives following percentage composition of various elements.
various elements. Okay, among them carbon is given. Carbon is present in 12.8 percentage, and hydrogen element is given 2.1% में है बोल रहा है, and the third element bromine दिया, bromine दिया, that is 85.1%. These three elements are given, carbon, hydrogen and bromine. Now continuation में इसके क्या करा थोड़ा देखिए. Molecular weight of the compound, molecular weight of the compound is, molecular weight of the compound is 187.9. Calculate molecular formula. Calculate molecular formula. This is the question. Once again I am repeating. Organic compound upon analysis gives following percentage composition of various elements. Carbon is present about 12.8%, hydrogen is present about 2.1% and bromine is present about 85.1%. Molecular weight of the compound is 187.9. Calculate the molecular formula of that compound. This is the question which is given in your textbook. Now it is also important, expected question, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 में रहता ही है. तो इसके अंदर पहले क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ओके, उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. दो काम है, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन में स्टेप 1, यू नो दैट व्हाट इज द स्टेप 1. फर्स्ट you have to write the percentage composition. You have to identify the elements. Which are those? Carbon is present about how much percentage? You have to write clearly. 12.8% carbon is present, that is given. Now what is the second element? That is the hydrogen. How much percentage is given? 2.1%. And bromine is present about how much percent? Bromine is present about 85.1%. So these are the various elements given which I was written clearly. यहाँ पे लिख लिया मैं, clear से लिख लिया carbon 12.8. that is your first step. In first step identify the elements which are given and write the percentage composition clearly. And the step 2, what is the step 2? In the second step you divide the percentage composition with their atomic weights. कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 12.8 दिया और इसका एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है. आपको मालूम है इसके डिवीजन में 12.8 बाय 12 1.06 आने वाला है. यहाँ 1.06 डिवीजन करो, 12 1 1 फिर 1.06 आ रहा है. नेक्स्ट इसके बाद में हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया 2.1, इट्स एटॉमिक वेट इज 1. देन द व्हाट इज द वैल्यू? 2.1 ओनली विल गेट. दिस इज द सेकेंड वन, हाइड्रोजन का ही है. नाउ देन ब्रोमीन का वंस अगेन व्हाट इज द वैल्यू, परसेंटेज कंपोजिशन वैल्यू गिवन 85.1. नाउ देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ब्रोमीन इज 80. अगेन देखिए उनसे भी दो वैल्यूज मिलते हुए रहते हैं इसके अंदर. 1.06 परसेंटेज आ रहा है इधर भी. डिवीजन करके देखिए, विल गेट दैट वन. सो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, लीस्ट वैल्यू को पकड़ रहा हूँ. दिस इज द लीस्ट वैल्यू. ये है भाई ये लीस्ट वैल्यू. इसको लेके क्या करना है, फिर सबको डिवीजन करना है. स्टेप 3 डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन, that is the divide the all values with the smallest value among them to get the simplest ratio. तो इस तरीके से आपको करने से simplest ratio आता. 1.06 over 1.06 that is 1, ये हो गया. Now then उसके बाद में 2.1 by यहाँ पे क्या हो गया भाई 1.06, यहाँ पे ये 2 आ जाता है यहाँ पे. Now then उसके बाद 1.06 by 1.06 you will get 1.
So then what is the ratio of the different elements in this compound? Which are the elements are there? Carbon is there, that is in 1:1. ये है 1 डाल लिया. Now then ये कौन सा है भाई? सेकेंड वाला हाइड्रोजन है, तो what is the ratio of that? 2 है. Now then another one, that is the bromine is given. और bromine इसका रेशियो क्या है भाई? 1 है. So 1:2:1, that is CH2Br. This is the empirical formula of that compound. CH2Br is the empirical formula of this compound. Now then continuation of that, after getting the empirical formula, you have to calculate the molecular formula of this compound. For that you are having the formula. Once again I am writing this empirical formula, just I was calculated, that is CH2Br. अभी आया था अपने को CH2Br. ये CH2Br क्या है? empirical formula है. So with the help of this empirical formula and molecular weight, we can calculate the molecular formula by using this formula. What is that formula? Molecular formula. Molecular formula is equal to empirical formula. Empirical formula into n. This is the formula to calculate the molecular formula. See here, n कैलकुलेट करना भाई, उसके बाद में इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर लेना. तो n फैक्टर क्या है? n फैक्टर इज नथिंग बट दी, जो मॉलिक्यूलर वेट दी आपने को प्रॉब्लम में, हाउ मच इज गिवन? 187.9, दैट इज 188 समझ लीजिए आप लोग. ठीक है. सो 187.9 को किससे डिवाइड करना? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करना. कार्बन का वेट कितना है? ये 12 है. वेट ऑफ द कार्बन इज 12. हाइड्रोजन 2 एटम्स है, इसीलिए 2 डाल लीजिए आप. ब्रोमीन का वेट कितना है? ये 80 है. वो टोटल कितना आएगा भाई? ये 94. अब 94 यहाँ पे डाल लेना. n इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. 188 इससे डिवाइड कर लिए तो आप 2 आएंगे आपको. नाउ देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, what is the empirical formula we get in this empirical formula is CH2Br. Then CH2Br is multiplied with what? This n factor, that is 2. Then what is the formula? That is C2, 2 into 2, that is 4, and this is the molecular formula of the compound. This is about the calculation of empirical formula and molecular formula with the given data. This is about the empirical formula. तो 2 प्रॉब्लम्स मैं कराया इसमें से, और 2 प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में है. ये 4 प्रॉब्लम्स पक्के प्रैक्टिस कर लीजिए. ये 4 प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम एग्जाम में आता. तो जो इम्पोर्टेंट था वो 2 इम्पोर्टेंट मैं आपको एक्सप्लेन करा मैं. नो नेक्स्ट, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में आने वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बैलेंसिंग द इक्वेशन है. इक्वेशन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में. बिफोर गोइंग टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कैसा कैलकुलेट करते हैं? NaH, और यू टेक द K2MnO4, यू टेक दिस वन K2MnO4. ये देखिए इसके अंदर मैंगनीज को अंडरलाइन कर लिया. अब ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो बोल रहा. कैसा कैलकुलेट करना? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स रहने से आप क्या करना, ये पोटाशियम रहने दो, हीलियम पोटाशियम, सोडियम अगर दिखा तो आपको, हाइड्रोजन अगर दिखा तो आप क्या लेना कैलकुलेशन में? +1 लेना. तो K2 की जगह आप क्या लेना है? +1 लेना है. तो कितने पोटाशियम्स है? 1 है, 2 पोटाशियम्स है, तो इसीलिए 2 इंटू +1 डाल लिया मैं. नो देन फिर Mn को अंडरलाइन कर लिया, तो उसका कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Mn ओनली. तो Mn को X ले लेना. फिर ऑक्सीजन इज द 8th ग्रुप एलिमेंट, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से ले लेता है ऑलवेज, except 1 or 2 compounds. Some compounds
In all remaining compounds, oxygen oxidation state is -2 only. Therefore, 4 into क्या लेना है आपको, ये -2 लेना है. टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेना. नो अब सिंप्लीफाई करिए इसको. 2 प्लस यहाँ पे x था, यहाँ पे 4 माइनस ही 8 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस ही हो गया, 4 2 सी 8 है, इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजा दिए प्लस से हो जाता और इसको इधर भेजा दिए माइनस हो जाता. तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यू विल गेट दी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है. So this is about the oxidation state in the K2MnO4. Now next NaHPO4 अगर डाल लिए तो आप कैलकुलेट करो, बोले तो इसके अंदर P को अंडरलाइन कर दिया. कैसा कैलकुलेट करना, NaHPO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर दिस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट रहने से 1 ले लिए आप. हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए ग्रुप में ही कंसिडर करते. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +1 ही लेना है, 1 हो गया. प्लस फास्फोरस का कैलकुलेट करो बोल रहा हो, x हो गया हो. नेक्स्ट यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4. ईच ऑक्सीजन का क्या लेना है भाई, -2 लेना है. इज इक्वल टू टोटल चार्ज कुछ है क्या, नहीं है, 0. देन इसको सिंप्लीफाई करो. 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू 8 - 2, that is equal to the 6. This is the oxidation state of the phosphorus in this compound. Oxidation state is nothing but the, ये compound में इसके ऊपर कितना चार्ज है, how much arbitrary charge present on the element in its compound. इसके compound में element पे कितना चार्ज है, that is called as its oxidation state. इस तरीके से oxidation state calculate करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन समझाया मैं आपको. फिर इसके बाद में बैलेंसिंग दी इक्वेशन के वास्ते ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना जरूरी था, तो इसीलिए मैं समझाया. एक इक्वेशन दे रहा हूँ, इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में. दैट इज Cr2O7 माइनस प्लस उसके बाद में SO2 दे दिया. गिव्स राइज टू Cr+3, यहाँ पे SO4 -2. दिस इज द गिवन. Cr2O7 -2 है यहाँ पे. Cr2O7 -2 प्लस SO2 gives rise to Cr+3 plus SO4 -2. I will check this question once again. Now then you calculate the oxidation state of the elements. इसके अंदर क्या करना है, क्लियर से जरा सुनिए, ये कॉन्सेप्ट सुनिए. फर्स्ट यू अंडरलाइन द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लेना क्लियर से. यहाँ पे Cr2O7 में क्रोमियम को अंडरलाइन करा, ऑक्सीजन को नहीं करा. SO2 में सल्फर को अंडरलाइन कर लिया और यहाँ पे क्रोमियम को अंडरलाइन करा. SO4 में ऑक्सीजन को छोड़ देना है, इसीलिए छोड़ के सल्फर को अंडरलाइन करा. एक इक्वेशन दे दिया, उसके अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस करो बोले तो पहला स्टेप क्या है, पहली चीज क्या है, यू हैव टू अंडरलाइन द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट को अंडरलाइन कर लेना. अंडरलाइन करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना. यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट. यहाँ पे Cr2O7 का इसका कैलकुलेशन है, यहाँ समझा रहा हूं मैं क्लियर से. Cr2O7 इज नथिंग बट दी 2 Crs रहने से इसको 2x ले लिया प्लस 7 -2. 7 - 2 है एक ऑक्सीजन का. टोटल चार्ज कितना बचा हुआ, ये -2 है. ओवरऑल चार्ज जो -2 है उसको लिख लिया हमने. नो 2x, ये -14 आता इज इक्वल टू -2. नो 2x इधर भेजा दिया मैं तो ये +14 होता. +14 -2 दैट इज 2x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 12 है. x इज इक्वल टू कितना होता भाई, ये 12/2 दैट इज इक्वल टू 6. इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है. इसको क्लियर से लिख लिया मैं यहाँ पे. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इज 1 chromium is 6, 2 chromiums 2x की वैल्यू 12 है. Now then
In this oxidation state of the sulfur, you have to take the sulfur as x, x ले लेना है इसको. Now then, दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2, टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0. नो x -4 इज इक्वल टू क्या लेना है भाई, 0. x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +4 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर से लिख लिया, +4. नो क्रोमियम एक ही एक एलिमेंट दिया, कंपाउंड नहीं दिया, ओनली वन एलिमेंट इज गिवन, कंपाउंड इज नॉट गिवन. Upon that element charge is there, itself is its oxidation state. उसका oxidation state clear से दे दिया, वो +3 है, इधर लिख लिया हमने. अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सल्फर X ले लिया, +4, each oxygen 4 oxygens है, each one is multiplied with -2, 4 -2. अब यहाँ पे जो चार्ज है वो -2 है, डाल लिया हमने. X -8 is equal to -2, x is equal to 8 -2, you will get this 6. यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज +6. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेप. पहले आप क्या करना, एलिमेंट्स के अंदर गौर करके इक्वेशन में, इक्वेशन यू हैव टू सी द इक्वेशन एंड यू हैव टू अंडरलाइन द एलिमेंट्स अदर देन द oxygen and hydrogen, and you have to calculate the oxidation number of those elements which I was calculated. Just I was calculated that you see that क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया. यहाँ पे क्रोमियम का राइट साइड में +3 है और यहाँ पे सल्फर का राइट साइड में +6 है. तो यहाँ पे क्या करना, पहले ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, पहचानना. यानी कि फर्स्ट ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम से ए क्रोमियम तक एक एरो से लाइन से मिला लिया हमें. नेक्स्ट ये सल्फर से लेके ए सल्फर तक एक एरो से मिला लिया, ऐसा. ठीक है, थोड़ा क्लियर. नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ मैं. वंस अगेन आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज Cr2O7 -2 plus SO2 gives rise to Cr +3 plus SO4 -2. This is the equation given. First you have to underline the element other than the oxygen, hydrogen. ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट को अंडरलाइन कर लिए और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए थे. ये +6 आया था और ये +4 आया था और ये +3 आया था और ये फिर +6 आया था. नाउ देन ए क्रोमियम से ए क्रोमियम तक ऐसा एरो से मिला दिया हमने और ये सल्फर से ये सल्फर तक ऐसा लाइन डाल दिया. अब गौर करना, यू हैव टू चेक इट आउट वेदर क्रोमियम अंडरगोस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यू हैव टू सी द ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर द रिएक्शन. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम +6? आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर दिस, राइट साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +6 से +3 हुआ, कम हुआ, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन. डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. लेफ्ट साइड में SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, राइट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ भाई, इंक्रीज हुआ. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको. नो देन फिर अब ये जो रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, इनको क्लियर से लिख लेना. राइट साइड में मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल के लिख ले रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नो नेक्स्ट राइट साइड में क्या लेना है भाई, रिडक्शन. कुछ भी इधर उधर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. What is the oxidation in this? थोड़ा गौर से देख लेके लिख लेना. SO2, conversion of the SO2 into the SO4 -2 is the oxidation. Now reduction कौन सा है इसके अंदर, Cr2O7 -2 is converted to the Cr +3. This is the reduction in this. ये reduction है, वो oxidation है. Now this is the first step. First you have to underline the element other than the oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को अंडरलाइन करके इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना. ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है आइडेंटिफाई करना.
उन दोनों को क्लियर से लिख लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ देन सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप यहाँ पे बैलेंसिंग द एलिमेंट, बैलेंसिंग द एलिमेंट्स, बैलेंसिंग द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन कामा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स के नंबर्स इधर बाजू इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है या नहीं है चेकआउट कर लेना, थोड़ा देख लेना, नहीं रहे तो बैलेंस कर लेना, बराबर कर लेना। तो वही काम कर रहे हैं अपन, बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इन दिस ऑक्सीजन को छोड़ दिया मैं, सल्फर कितने हैं 1 है, क्लियर से लिख लिया। और राइट साइड में कितने सल्फर्स है 1 है, क्लियर से लिख लिया भाई 1 है। दोनों तरफ, इस तरफ उस तरफ, दोनों तरफ भी on both side number of sulfurs are same, therefore SO2 gives rise to SO4 only, already it is balanced. Now next see here in the right side how many chromium atoms are there, 2, and see that after the reaction how many chromium atoms are there, यहाँ पे खाली एक है, दो नहीं है, एक है। तो इसीलिए क्या करना, यहाँ पे और एक क्रोमियम को जोड़ के लिखना, Cr2O7 -2 gives rise to, have to add the another chromium, that is this one chromium ion, this is the 2Cr plus 3, this is the first second step, that is over। फर्स्ट स्टेप में अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्लियर से लिख लिए, और सेकेंड स्टेप में बैलेंसिंग द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन कामा हाइड्रोजन कर लिए। नाउ नेक्स्ट वन, इसके बाद में फिर क्या करना, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर लेना है। बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम्स में रिएक्शन के लेफ्ट साइड में देखिए, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 2 है, क्लियर से लिख लिया। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 4 है, क्लियर से लिख लिया। किधर कम है किधर ज्यादा है, on which side we have to add the oxygen atoms, see here you have to check it out। in the left side there are 2 oxygen atoms are there, in the right side 4 oxygen atoms are there, the difference between these two is 2। दो ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट साइड कम रहने से ऑक्सीजन एटम्स को लेफ्ट साइड मिला रहा हूं मैं, कौन सी शक्ल में मिला रहा हूं, you have to add this oxygen atom in the form of H2O, because in the H2O one oxygen atom is there, that's why नेसेंट ऑक्सीजन को नहीं मिला सकते अपन, उसीलिए ऑक्सीजन को एडिशन करते खुद में अपन ये फॉलो होना है, H2O के जैसा ऑक्सीजन को ऐड कर लेना, 2H2O, जितने कम है उतने ऐड कर लिया मैं, 2H2O gives rise to, चलो रिएक्शन कंप्लीट कर लो, दैट इज SO4 -2, सल्फर बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। और नेक्स्ट सी इन दिस, ये रिडक्शन के तरफ देखिए आप लोग, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, 7। राइट साइड में रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्रोमियम के पास ऑक्सीजन एटम्स है या नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है, ये क्रोमियम एटम्स है। 7 और 0 डिफरेंस कितने का होगा, 7 का डिफरेंस हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एटम इज 7, देयरफॉर यू हैव टू ऐड दी 7 ऑक्सीजन एटम्स इन द राइट साइड ओनली, किधर कम है उधर ऐड कर लेना, +3 + 7 H2O। So this is about the balancing the oxygen atoms। ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। Now next step that is the balancing the हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। सो बैलेंसिंग दी हाइड्रोजन एटम्स में आप हाइड्रोजन एटम्स को काउंट कर लीजिए, रिएक्शन के लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट साइड में हाइड्रोजन एटम्स है क्या, 0। हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। किधर कम है, राइट साइड में कम है, in the right side there is no hydrogen atom, therefore you have to add the 4 hydrogen atoms in right side, right side में हाइड्रोजन एटम्स को मिला के लिखना, SO2 + 2H2O gives rise to SO4 -2 प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स कम है उसको एसिडिक मीडिया में 4H+ बोल के लिख लेना है, 4H+, ये हो गया बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ 4 हो गए, बैलेंस हो गए।
तो चलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ देखिए, ये लेफ्ट साइड में देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, जीरो, एंड राइट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स है भाई, 7 to 14 हाइड्रोजन एटम्स है, 14 हाइड्रोजन एटम्स है, ये 7 ये 2, 7 to 14 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। सो लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 14 है, किधर मिलाना, लेफ्ट साइड में मिलाना, Cr2O7 -2 को कितने हाइड्रोजन एटम्स मिलाना, 4, कौन से शक्ल में, 4H प्लस कैसा मिलाना, और देन 2Cr + 3 + 7H2O। Okay, this is about the balancing the hydrogen atom. Now then another step is there, balancing the charges, and next one is the equalizing the electrons. Remaining 2 or 3 steps are there. First you practice these things, now then continuation of this I will explain in next class inshallah. And in the material remaining questions are there on the balancing the equation. You practice up to these 4 steps. ये जो 4 steps है, ये 4 steps तक practice करिए आप। remaining मटेरियल में रहते क्वेश्चंस, वो मटेरियल के क्वेश्चंस ले लीजिए। MnO4 minus plus SO2 gives rise to Mn+2 plus HSO4 minus बोल के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में ये 4 स्टेप्स डालिए, प्रैक्टिस करिए। एंड रिमेनिंग थिंग जो बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस है, एंड इक्वलाइजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेट इक्वेशन आई विल एक्सप्लेन टुमारो इंशाल्लाह। बाकी का इसके 2-3 स्टेप्स है वो कल एक्सप्लेन करते हैं।